You should know a word. Generally, people tend to think that if you know the meaning, a few synonyms and antonyms, your job is done. No. Unfortunately or fortunately, for MBA entrance exams, especially CAT, that is where your job starts. Right? So what exactly constitutes knowing a word? The first and the foremost is pronunciation. You should know how to say the word properly. Of course, this is not IELTS where somebody would speak something and you would be asked to interpret it. This is not that type of an exam. But if you really want to know a word, you have to start by understanding how is it said, what is the correct way, what is the correct vocalization of that particular word. Sometimes because the meaning is contained in the sound. Let me give you an example. This might sound a bit weird to you, but let me give you an example of this. Let's take a word now. This is pronounced as suave. That's the pronunciation, suave. Now the moment you hear that vocalization, what is the feeling that you're getting? Aren't you getting the feeling that this has got something to do with elitism? And that's exactly what the meaning of this word is. If somebody is suave, you want to say that he is very sophisticated, cultured, very well-mannered. And pronunciation is also important because in this country, not only do we mispronounce words, we mispronounce words differently depending on the region that we are living in. So, you should know how to say a word first. The second thing here, which is very important, of course, you should know the meaning of the word. That's a given, no doubt about it. The third, of course, you should know a few synonyms and a few antonyms of the word. But here you have to be very careful. Synonyms are not words which have the same meaning. Antonyms are not words which have the opposite meaning. No. When you talk about synonyms and antonyms, you are talking about the sense. For example, let's take one major human emotion, which is sorrow. Suppose this is the emotion that you want to express. You can use many words to express this. You can use many words to express this. So all the words which would express sorrow would be synonyms, but that does not mean they are substitutes of each other. Not only knowing synonyms, you need to understand these nuances. For example, if somebody is sad, you can say that he is woeful. Right? You can also say that he is woebegone. You can also say that he is crestfallen. You can also say that he is lachrymose. Okay? But you can also say that he is saturnine. You can also say that he is melancholic. Melancholic is the word, melancholic. Right? So now I have already given you 6 words. Now because all these 6 words are expressing some form of a sorrow, you will say that they are synonyms, and they are synonyms, but their meanings are different.
depending on why is that person sad and what is the extent of sadness that he is experiencing, you can use these words. For example, when I say woeful, ये सब आप नोट करते जाइए please. You have to hear, write and understand at the same time. Suppose I say a person is woeful. He has reached the maximum amount of sorrow that is possible. His cup of woe, which means sorrow, is full. He is woeful. But if I say a person is woebegone, it means he is sad because he thinks that the past was glorious and the present is horrible. And he is thinking about the glorious past, right? And he is comparing it with the present and he finds that the present is horrible in comparison and he is sad because of that. तो जो पहले कितना अच्छा था ये सोच के आज रोते रहता है, you'll say he is woebegone. Right? Crestfallen. Crestfallen. So, if a person is sad because he wanted to achieve something, he made an attempt to achieve it, but it turned out to be a failure, then that person would be crestfallen. He is sad because he wanted to achieve something, but he could not. But he failed in achieving that. He made an attempt, he made a try, but he failed in achieving that and he is sad because of that. Then he is crestfallen. Again he is sad, but the reason is very different. Lachrymose. This word is taken from the lacrimal glands situated in the eyes. These are the glands which are responsible for secreting tears. So when you say that a person is lachrymose, literally tears are falling down his cheeks. उसके आंसू दिख रहे हैं. अब कारण कोई भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है कि वो दुखी क्यों हैं, बट लैक्रिमोस का डोमिनेंट इमोशन क्या है? आंसू छलक रहे हैं. आई एम सॉरी इफ दैट साउंडेड टू पोएटिक. सो दैट इज लैक्रिमोस. When is a person saturnine? A person is saturnine because he sees no hope in the future and he is sad because of that. एक ऐसा इंसान जो इसलिए दुखी है क्योंकि उसको पूरा भविष्य अंधेरे में लग रहा है. The correct word for that is saturnine. Right? Melancholic. Melancholic is not exactly sorrow. Melancholic is a person who has a longing for the past. Suppose आप IIM अहमदाबाद से MBA करते हो, आपको 2 करोड़ पर, चलो ठीक है आप सपने लगा रहे हैं तो बड़े सोचते हैं, आपको 2 करोड़ पर मंथ की सैलरी है? सपने देखना तो बड़े ही देखो ना. और आप बहुत पैसे कमाएं, पूरी दुनिया घूमें, ठीक है, और 30 साल के करियर के बाद अब वापस आपके IIM आते हो और आपको वो चाय वाला दिखता है जहां पे आपने आपकी जिंदगी की पहली चाय पी थी. वो गलती से निकल गया, सॉरी, पहली चाय पी थी. अब आपके मन में क्या भावनाएं आएंगी? आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हो, राइट? हर देश में आपका एक घर है, आपने बहुत पैसे कमाए, आप जिंदगी से बहुत खुश हो, लेकिन वो 5 मिनट के लिए आपको एकदम से अंदर से तड़प आएगी, काश वो जमाना वापस आए. You have that longing for the past, and if you become emotional because of that, you are being melancholic. This is related to nostalgia. अब आप बताइए, ये पूरे 6 synonyms है, बट जहां आपको melancholic यूज करना है वहां वो बेगॉन बोल सकते हो क्या? नहीं. जहां आपको crestfallen बोलना है वहां आप सैटरनाइन बोल सकते हो क्या? नहीं. और ये नुआंसेस सिर्फ सिनोनिम पता रहने से कुछ नहीं होगा. कौन सा सिनोनिम कहां? बिकॉज इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज ओनली वन परफेक्ट वे ऑफ सेइंग कन्वेइंग एन इमोशन. देयर माइट बी मेनी करेक्ट वेज, बट देयर इज ओनली वन परफेक्ट वे. इसलिए आप अगर आरसी के भी इंस्ट्रक्शंस देखोगे, दे ऑलवेज से प्लीज मार्क द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. आप क्वांटिटेटिव के डायरेक्शंस पढ़िए, प्लीज मार्क द करेक्ट ऑप्शन.
तो करेक्ट और मोस्ट करेक्ट, ये फर्क है वो दोनों एरियाज में। खैर आप जब सॉल्व करेंगे तब आपको और समझ में आएगा। तो सिर्फ इट्स नॉट दैट यू शुड ओनली नो द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, you should know these nuances, very important. Fourth, you should know the tone of a word. Some words are used in only a positive sense, some words are used in only a negative sense. For example, let's take the word burgeon, burgeon, and let's take the word mushroom. Mushroom verb, not the mushroom noun which you eat in restaurants. Both of them have exactly the same meaning. तो अब आप पूछोगे सर आपने तो अभी बोला था कि नहीं देयर इज ओनली वन परफेक्ट वे, तो ये दोनों का मीनिंग सेम है। एक मिनट, ये मशरूम मैंने कहीं उड़ा दिया, मशरूम को वापस लाता हूं मैं। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के पंगे होते हैं कभी कभी। आई एम न्यू टू दिस सिस्टम, सो यू विल हैव टू काइंडली बेयर विथ मी इफ सम ओकेजनल मिसहैप्स हैपन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी, फॉर अलाउइंग मी दैट। तो ये दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स टू ग्रो एट अ रैपिड पेस। टू ग्रो एट अ रैपिड पेस, एक बहुत जल्दी बढ़ जाना। ओके, बट फर्क ये है कि ये एक पॉजिटिव इमोशन कन्वे करता है और ये एक नेगेटिव इमोशन कन्वे करता है। सपोज आई से द बर्जियनिंग ऑफ MBA कॉलेजेस इन इंडिया, द बर्जियनिंग ऑफ MBA कॉलेजेस इन इंडिया, तो मैं ये बोल रहा हूं दैट देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ MBA कॉलेजेस इन इंडिया एंड द ग्रोथ इज हेल्दी, पॉजिटिव। बट इफ आई से द मशरूमिंग ऑफ MBA कॉलेजेस इन इंडिया, मैं ये बोल रहा हूं कि देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द नंबर ऑफ MBA कॉलेजेस इन इंडिया एंड द ग्रोथ इज अनडिजायरेबल, द ग्रोथ इज हार्मफुल। अब आपको ये नहीं पता और आपको सिर्फ पता है कि मीनिंग सेम है। इमेजिन द रिस्क यू आर कैरिंग। You are actually carrying the risk of expressing an emotion completely opposite to what you want to express. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसका पॉजिटिव मीनिंग है, इसका नेगेटिव मीनिंग है। तो कोई भी चीज मशरूम हो रही है तो वो बुरी है, कोई भी चीज बर्जियन हो रही है तो वो अच्छी है। टोन ऑफ द वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप पूरे पैसेज का पॉइंट ही मिस कर सकते हो। फिफ्थ, रिमेंबर 7 चीजें हैं। मैं जब नोइंग अ वर्ड बोल रहा हूं उसके पीछे 7 चीजें हैं, तो ये 4 हो गया। द फिफ्थ इज द पार्ट ऑफ स्पीच। सपोज आई गिव यू अ वर्ड, ओके, इज इट अ नाउन, इज इट अ वर्ब, इज इट एन एडजेक्टिव? मेनली वोकैबुलरी में नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स आते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा, उसी वर्ड को आपको अलग पार्ट ऑफ स्पीच करके यूज करना है तो वो वर्ड कैसे बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को यूजुअली ये एक प्रॉब्लम रहता है कि भैया ये 2 वर्ड्स में फर्क क्या है। भैया नहीं अंकल, ये 2 वर्ड्स में फर्क क्या है? प्रैक्टिस विथ अ C एंड प्रैक्टिस विथ एन S। तो भैया ये ऐसा है कि ये नाउन है और ये वर्ब है। तो जब मैं प्रैक्टिस वर्ड यूज कर रहा हूं एंड आई मीन सम कमोडिटी और थिंग, फॉर एग्जाम्पल यू नीड मोर प्रैक्टिस इन वोकैबुलरी, यू नीड मोर प्रैक्टिस इन वोकैबुलरी, यहां पे द वर्ड इज सिग्निफाइंग अ थिंग, तो ये हुआ नाउन, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। यहां पे वर्ड एक एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये वर्ब है, तो इट हैज टू बी SE। यू नीड मोर प्रैक्टिस, CE, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, SE। यही फर्क एडवाइस में भी है, यही फर्क प्रोफेसी में भी है, यही फर्क डिवाइस में भी है। डिवाइस विथ अ C इज एन इंस्ट्रूमेंट। द कंपनी हैज आस्क्ड मी टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज सेल्स। यहां पे मैंने वर्ब करके यूज किया तो SE आएगा। द डिवाइस इज मैल फंक्शनिंग, यहां मैंने नाउन करके यूज किया है तो C आएगा। सीधी बात है, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच बहुत जरूरी है, राइट?
और इसी के साथ एक और चीज है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे SOUL, SOLE, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, सोल। तो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो मतलब सेम, फोनेटिक मतलब साउंड, तो होमोफोन्स का मतलब क्या हुआ? हैविंग अ सिमिलर साउंड। पर इसका मतलब है आत्मा, राइट? इसका मतलब, इसके दो मतलब है बाय द वे। एक तो वो आपके जूतों की सबसे निचली परत, दूसरा अकेला। ही इज द सोल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या? वो जूते का पट्टा उसका है? ही इज द सोल ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो अकेला ही ओनर है। एक बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एक लड़की के साथ। एक लड़की ने बोला था आई विल गिव यू माई सोल, मुझे लगा उसने ये बोला, उसने एक्चुअली ये बोला था, और वो पढ़ी फिर तो गड़बड़ हो जाती। तो ये सब चीजों के लिए ना वोकैबुलरी। एक बार क्या हुआ, एक बंदा ऑफिस में गया, पहला दिन था। वोकैबुलरी क्यों इंपॉर्टेंट है? और बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। एट द एंड ऑफ द बॉस सेड यू आर क्वाइट डॉगेड इन योर अप्रोच। एकदम सीरियस फेस रख के, यू आर क्वाइट डॉगेड इन योर अप्रोच। अब ये बंदा डर गया, डॉगेड का मतलब ही नहीं पता। स्टार्टिंग में डॉग है, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। बंदा टेंशन, बॉस ने मेरे को कुत्ता बोल दिया। फिर बेचारे घर जाके डिक्शनरी देखना पड़ा, एंड दे फाउंड आउट डॉगेड वाज एक्चुअली अ पॉजिटिव वर्ड। फाइंड आउट द मीनिंग। सपोज समबडी सेज आई लाइक योर डॉगेडनेस, तो ये तो पता चलना चाहिए यार बॉस तारीफ दे रहा है कि गाली मार रहा है। वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू वन मोर वेरी प्रैक्टिकल यूज ऑफ इंग्लिश। इमेजिन द सिचुएशन, आप घर पे बैठे हो, मम्मी डैडी के सामने है, और आपकी गर्लफ्रेंड ऑब्लिक बॉयफ्रेंड का फोन आया, ओके? और आप चाहते हो कि आपके माँ बाप को पता ना चले कि आप जिससे बात कर रहे हो उनका जेंडर क्या है। इंग्लिश में बात करना, हवा ही नहीं लगेगी। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, वेयर आर यू गोइंग, या आई विल सी यू टुमारो। खट, पता ही नहीं चला। हिंदी में बोल के देखो, हाँ क्या कर रही, खत्म, गेम ओवर। प्रैक्टिकल यूजेस है सर इंग्लिश के, समझा करो, भावना को समझो आप लोग, हैं? तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पता होना जरूरी है, ये बोल रहा था मैं। सिक्स्थ, एनी एटिमोलॉजी और जीके एसोसिएटेड विद द वर्ड। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ इंग्लिश, इट इज सेड, is not actually an original language, just like Indians are not a pure race. Indians are a product of miscegenation. Find out what that means. Spelling बताओ। miscegenation. Anyway, हम इस बात पे हम ये सोच रहे थे एटिमोलॉजी क्या है। जैसा मैंने एक वर्ड लिखा था, बोनाफाइडी। अब यहां से आप कितने वर्ड्स में घुस सकते हो? इसका प्रीफिक्स जो है दैट इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बेने, विच मीन्स गुड और बेनिफिशियल। ठीक है, तो देखते हैं। बेनेफैक्टर, ठीक है, बेनेवलेंट। फटाफट लिखते जाइए प्लीज, टाइम नहीं है अपन के पास। बेनेवलेंट। बेनाइन, इसका मतलब हार्मलेस। बेनाइन ट्यूमर आपने सुना होगा कभी ना कभी, अ ट्यूमर विच इज कंप्लीटली हार्मलेस, ओके। बेनिफिशिएंट, राइट। बेने का एग्जैक्ट ऑपोजिट है मैलस। तो बेने निकाल के मैलस का फॉर्म डाल दीजिए, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट्स आपको मिलेंगे। जैसे
मैलेफैक्टर, राइट, मैलेवलेंट, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब a tumor which is growing very fast and actually can cause death. Maleficient, ये भी हो सकता है, right? Fide is a Latin word, I think it can be Greek also, check कर लेना, which means faith. So if you have faith on yourself, you will say that you are confident, right? Saying that humans are polygamous and expecting fidelity in a relationship is contradictory. Fidelity, to remain faithful to your partner, and obviously infidelity, being unfaithful to your partner. Okay, then in some religions you have the word infidel, which is used for a person who does not have faith, but in this context faith would mean a religion. तो ये होता है एटिमोलॉजी. हमने शुरू एक वर्ड से किया, एक रूट लिया, उसके साथ 8 वर्ड आ गए, दूसरा रूट लिया, उसके साथ 4 वर्ड आ गए. तो ये इसको बोलते हैं एटिमोलॉजी. टेकिंग द रूट ऑफ अ वर्ड and trying to go in as many directions as you can. This is called etymology. Clear? अब ऐसे ही GK. There are many words in English which are named after a person. For example, Bowdlerize. थोड़ा सा old fashioned हूं, तो I'll use the English, British English for write a Z here. I'm so sorry, ये ऐसा नहीं जाता है, ये ऐसे जाता है. हाँ. Bowdlerize. Now this word has been taken from the name of a gentleman called Thomas Bowdler. I think the year was 1818. और ब्रिटिशर्स यूजुअली शेक्सपियर को लेके बहुत इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हैं, और शेक्सपियर के वर्क्स तो पब्लिश हो चुके थे. तो ये बंदे ने क्या किया, शेक्सपियर के कंप्लीट वर्क्स लिए एंड ही कट आउट द पार्ट्स विच ही कंसिडर्ड ऑफेंसिव. उसके हिसाब से जो चीजें इमोरल थी, अनएथिकल थी, या जो चीजों में गालियां थी, उसने वो पार्ट कट करके बचा हुआ पार्ट रिपब्लिश किया. तो वहां से वर्ड आया Bowdlerize, which means to delete parts which are considered to be offensive. Remember, Bowdlerize, if you say that I have read a Bowdlerized version of Oscar Wilde's novel, इसका मतलब यह है कि पहले उसका अनएडिटेड वर्जन पब्लिश हो चुका था, उसके बाद किसी ने वो लिया, सेंसर किया और बचा हुआ पब्लिश किया. तो बाउडलराइज का ये मीनिंग होता है. तो व्हेन यू से इट्स अ बाउडलराइज वर्जन, उसमें इंप्लाइड है कि द एंटायर वर्जन हैज बीन पब्लिश्ड कभी तो भी. बट इफ यू से एडिटेड, उसमें ये सेंस नहीं है कि पूरा वर्जन पहले छप चुका है, लेकिन आप बाउडलराइज बोलोगे, उसमें यह सेंस है कि फुल वर्जन पहले छप चुका है. इसलिए स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, और बाउडलराइज हमेशा नॉवल ही होती है, मूवी नहीं हो सकती. गॉट द आइडिया? तो इस तरह का कोई जीके अगर वो वर्ड से एसोसिएटेड है तो. एक और वर्ड, शॉविनिज्म. अरे यार, हाँ भाई, ब्लू चाहिए भाई, ये वाला साइज चाहिए भाई. Chauvinism, which means super patriotism. This is also taken from the name of one of Napoleon Bonaparte's generals, William Chauvin,
who was super patriotic towards Napoleon. तो जो भी नेपोलियन ने बोला वो सही है. तो शॉविनिज्म का बेसिक मीनिंग है एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स समथिंग. अब अनफॉर्चुनेटली पिछले 50 सालों से ये एक ही सेंस में यूज हुआ है, एंड दैट सेंस इज मेल शॉविनिज्म. A man who thinks that men are superior and women are always inferior to men. He is called a male chauvinist. And there is a joke by famous American comedian Dave Chappelle. Chauvinism is dead because women killed it. Try to figure that out. थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा आपको अंग्रेजी में. अंग्रेजी ऐसा ही मतलब रट्टा मार के आने लग गई तो हो ही गया बॉस, है कि नहीं? तो इस तरह का कुछ एटिमोलॉजी, कुछ जीके. तो इससे क्या होगा? हम कोशिश क्या कर रहे हैं? हम कोशिश ये कर रहे हैं, आपको पता है कि एक ऐसा घास का तिनका आपने जमीन पर रख दिया, हल्की सी हवा आई, वो घास का तिनका उड़ जाएगा. ऐसे 100 तिनके आपने एक रस्सी से बांध के रखे, उड़ वो भी सकता है, लेकिन अब बवंडर लगेगा, हवा से नहीं उड़ेगा. समझ रहे हो आप? तो एटिमोलॉजी वो रस्सी है जो ये घास के तिनकों को बांध के रखने में आपकी मदद करेगी. एटिमोलॉजी और जीके इज दैट रोप which will help you to tie all the loose strands of grass so that they don't fly away easily. That is the importance. And the acid test of whether you know a word or not is usage. I give you a word, you give me a good sentence. Good sentence. Not a stupid sentence. For example, मैं आपको word देता हूं मैग्नानिमस. अब इसके एटिमोलॉजी पे शुरू नहीं होता मैं, नहीं तो बहुत सारे. मैग्नानिमस, पुसिलैनिमस, यूनानिमस. Virat Kohli's selection as the captain of the Indian cricket team proved that even unanimous decisions can be wrong. Everybody agreed. Still, it was a wrong decision. Magnanimous, generous or large-hearted. Okay. अब मैं बोलता हूँ give me a sentence with the word magnanimous. तो आप मन में ना ऐसे टुच्चे sentences मत बनाना. He was a very magnanimous person. कुछ ऐड ही नहीं हुआ ना. आप जो भी बोलते हो कुछ वैल्यू ऐड होना चाहिए. If all the rich of the world become magnanimous, no one would be poor. No, that's a good sentence. If all the rich of the world become magnanimous, the inflation rate would be 1000%. That's an outstanding sentence. Bill Gates' acts of charities are always misunderstood as an act of magnanimity. Now that's a sentence which will set people thinking. Misunderstood क्यों बोला इसने? कोई छुपा इंटेंशन है क्या? तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाने का, कुछ मशहूर लोगों को बदनाम करने का, मन में बोलने का नहीं. केस वेस फाइल कर दिए तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, अभी नहीं है, एमबीए बनने के बाद रिस्क ले सकते हो, आईएम से किया तो दैट इज द एसिड टेस्ट. और जब तक किसी भी वर्ड पे ये सातों चीजों पे आपका अगर कंट्रोल नहीं है तो प्लीज ये मत बोलना कि मुझे वो वर्ड पता है. आपको कुछ नहीं पता. आपको कुछ नहीं पता. रिमेंबर, अगर आपका टारगेट सिम्बायोसिस है, सीईटी, पुम्बा, ऐसे कॉलेजेस अगर है ना, तो ये सीरियसली नहीं लेने का. लेकिन आपका टारगेट अगर आईएम्स है, आपका टारगेट अगर मोर देन 99% इन इंग्लिश है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. और अगर डिप्रेसिंग लगा ना कभी, तो सिर्फ एक नंबर याद रखना, साल के 18 लाख. आप कैसे भी हो, आप टॉप 15 में पहुंच गए ना, तो इतना तो आ जाएगा पैसा. 15-18 लाख C2C तो आ जाएगा. तो आपको 18 लाख पाना है, उसके लिए मेहनत नहीं करना है. तो ऐसा तो नहीं होता ना प्रभु, है? मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो व्हेन आई से यू शुड नो अ वर्ड, दिस इज व्हाट आई मीन.